ایسا وقت آ رہا ہے, آنے والا ہے, اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی. مفاہمت کا تو کہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے, مفاہمت تو بہت دور کی بات ہے. اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے, پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے, تو ہم ان سلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے اس وقت پہ الیکشن جلد از جلد ہو. ویلکم ٹو پروگرام نیوز لائن. میں ہوں آپ کے ساتھ شائستہ یوسف. ڈاکٹر ماریہ ذاتی مصروفیات کی سبب آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. آنے والے پروگرام میں وہ آپ کو جلدی جوائن کریں گی. ناظرین, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, یہ جملہ کہنے والی اور اس پر جی جان سے آخری دم تک عمل پیرا رہنے والی عظیم شخصیت, آل پارٹیز حریت کانفرنس کے بزرگ رہنما سید علی گیلانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کی عمر 92 برس تھی. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. سید علی گیلانی نے اس سوچ کو کشمیریوں کی کئی نسلوں میں پروان چڑھایا. وہ بھارتی تسلط اور جبر کے سامنے ہمیشہ سینہ سپر رہے. تشدد, قید اور نظر بندی کی صعوبتیں جھیلیں, لیکن اپنے موقف سے کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. بھارتی ظلم کو علی گیلانی نے ہمیشہ بے نقاب کیا, اور اب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے جسد خاکی نے بھی بھارت کو بے نقاب کیا. ان کی تدفین سے متعلق بھارتی ریاست پر طاری جان نے یہ عیاں کر دیا, ان کی جد و جہد رائگاں نہیں جائے گی اور شہیدوں کا خون ضرور رنگ لائے گا. سید علی شاہ گیلانی کی زندگی اور سیاسی جد و جہد پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تیرا حسن ہوا درد کی تصویر, آنسو ہے تیری آنکھ میں, پیروں میں زنجیر. کھولو دروازہ, کھولو دروازہ, کھولو. تمہاری جمہوریت کا نتیجہ جنازہ نکل رہا ہے, ہندوستان کی جمہوریت کا. 8 لاکھ کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں, لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے. Birth I am not Indian. One state. By birth I am not Indian. We are under occupation. ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا یہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق ہے. اس کو آپ چاہے 8 لاکھ کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں, لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے. اسلام کی نسبت سے ہی, اسلام کی نسبت سے ہی, اسلام کے تعلق سے ہی, اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین, رحمتاً للعالمین. پاک سرزمین, پاک سرزمین, لا الہ الا اللہ. عزم و ہمت کی داستان, مزاحمت کا استعارہ, سید علی شاہ گیلانی. ناظرین, پینل کا تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیمہ احمد مہجور, کشمیری صحافی ہیں اور وادی کی صورتحال پر گہری نظر رکھتی ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ نعیمہ صاحبہ. اس کے ساتھ ساتھ تعارف کرا دیتی ہوں پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے چودھری جعفر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ تمام مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ. نعیمہ, میں سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی, کہیے گا تدفین کے بعد ابھی وادی کی کیا صورتحال ہے؟ جی, وادی میں ابھی تک حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ریسٹرکشنز بدستور قائم ہے, لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی تھی کہ شاید انہوں نے یہ جو انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کی ہیں, لیکن ابھی میں نے فون کیا تھا, کشمیر تو نہیں لگ رہا ہے. اور لوگ آنا چاہ رہے ہیں, باہر آنا چاہ رہے ہیں, لیکن لوگوں کو اجازت نہیں ہے. بلکہ ڈاؤن ٹاؤن کا جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ بہت سارے نوجوان نکلے تھے اور احتجاج کر رہے تھے, لیکن ان کو آنے نہیں دیا. وہاں پہ بہت سارے لوگ کچھ زخمی بھی ہو گئے ہیں. صورتحال بہت ہی سنگین ہے اور لوگوں میں غصہ ہے, افسردگی ہے اور پریشان حال ہے کہ انہیں
सैयद अली शाह गिलानी साहब की तदफीन में इजाज़त नहीं दी गई, तो उसके बाद वो वहाँ पे जो जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को इजाज़त नहीं दी गई और सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल नईमा, जैसा कि आप कह रही हैं कि सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, इतनी बड़ी शख्सियत जिनका इंतकाल हुआ और इंतकाल पर घर का मुहासरा कर लिया, फिर वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। आपके ख्याल में जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो क्या इसका रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? हमने देखा कि इंडियन फोर्सेस जिस तरह से खौफजदा थे जब बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत हुई और जिस तरह से अवाम ने रिएक्ट किया उस पर भी। देखिए, जब ये कर्फ्यू भी हटाते हैं तब वहाँ पे इस तरह के जो फौजी हर सड़कों पे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी तादाद सड़कों पे रहती है, घरों के बाहर रहती है, बहुत सारे ऐसी जगहों पे जहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो वहाँ पे ना जो दफ़ा 144 है, 3-4 लोगों को इकट्ठे होने नहीं देते हैं। जैसे कि आपने पिछले 2 साल में भी देखा, अगर कर्फ्यू नहीं था फिर भी लोगों को आने जाने की इस तरह की नक्ल हमल पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियां है, तो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है कि इतनी भारी तादाद में जब फौजी हैं और बंदूक ताने हुए हैं तो उनका बाहर निकलना, जाहिर है हर कोई आना चाहता है, एहतजाज करना चाहता है, सैयद अली शाह गिलानी के घर जाना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की फौजी बंदिशें और जिस तरह की वहाँ पे जातियां हैं, उसको देखते हुए लोग भी अब समझ रहे हैं कि इसमें और होंगी और पैलेट गन चलेंगी, क्योंकि आपको याद है 10,000 से जायद हमारे बच्चे हैं जिनको पैलेट लगे थे जब बुरहान वानी की शहादत हुई थी, तो इसीलिए लोग इस वक्त बहुत ही खौफ में हैं। और लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग वहां पे उस जनाजे में जाना चाह रहे हैं, वो दोबारा वहां पे जाके उनकी तदफीन जिस तरीके से हुई है दोबारा करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में रिएक्शन डेफिनेटली होगा और देखना होगा कि जब ये रेस्ट्रिक्शंस अगर उठाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये उस तरह की रेस्ट्रिक्शंस उठाएंगे कि जहां लोगों को आज़ादी होगी कि वो नक्ल हमल करें। अच्छा नईमा, श्रीनगर के शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन की ख्वाहिश भी थी उनकी, लेकिन क्यों इंडियन फोर्सेस ने रोका, क्यों वहां तदफीन नहीं करने दी गई? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि मज़ार शोहदा में हज़ारों ऐसे शहीद हैं जो दौरान तहरीक जो है हलाक किए गए हैं, जिनकी हलाकतें हुई हैं, और गिलानी साहब ने भी ये वसीयत की थी कि उन्हें उसी मज़ार में दफनाया जाए, लेकिन जब अगर उनको वहां पे लिया जाएगा तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा कोहराम होगा, जुलूस निकलेगा, सारी वादी सड़कों पे होगी और वहां मज़ार शोहदा की तरफ उनका रुख होगा। और मुझे लगता है इसी को देखते हुए भारतीय हुकूमत ने वहां पे इस तरह की सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, क्योंकि ये एक तरह से एक लावा फूट पड़ेगा कि लोग चाह रहे हैं सड़कों पे आना और इस तदफीन में शामिल होना, लेकिन इसको हटाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वहां लोग आराम से बैठे हैं और किसी को किसी की फिक्र नहीं है, तो ये सारा एक फसाद है, एक ड्रामा है, एक फॉल्स नॉर्मलसी का एक ड्रामा है। तो लेकिन जहां आप देख लीजिए, जब भी ये रेस्ट्रिक्शंस उठेंगी किसी न किसी तरह से लोग निकलेंगे और एहतजाज का मुजाहिरा करेंगे। बिल्कुल, एहतजाज को तो रोका नहीं जा सकता, आप ठीक कह रही है नईमा। अच्छा, एक तरफ 2 साल से मुसलसल हम देख रहे हैं वादी जो है वर्स्ट स्टेट ऑफ ऑपरेशन में है, हत्ता कि जो प्रो इंडियन पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी कैदोबंद काटी है, उन्होंने भी नज़रबंदियाँ काटी हैं। ऐसे में अब जबकि गिलानी साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो कश्मीर की तहरीक और ख़ासकर APHC का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, इससे कोई तजाद तो नहीं है इसके साथ कि बहुत सारे ऐसे सेटबैक्स पहले भी आए हैं इस तहरीक में, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि जितने सारे सेटबैक्स आए हैं उसके बाद भी तहरीक कभी रुकी नहीं है, तहरीक जारी है और तहरीक हमेशा बहुत ही ज़्यादा उसमें जो नौजवान बार बार आ रहे हैं और उसको चला रहे हैं। अब एक चीज है कि इस वक्त जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसमें बेशतर सारे लीडर्स जो हैं वो इस वक्त जेलों में बंद पड़े हैं, नजरबंद रखे गए हैं, उनका कहीं पे नाम भी नहीं लिया जाता है। जैसे मीडिया है, मीडिया में उनको इस तरह से गायब कर दिया गया है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम है इसकी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नई क़यादत को सामने
होगा किसी भी सूरत में APSC के जो लीडर बाहर है या जो बैरून मुल्क है उनको आके इस तहरीक को चलाना होगा, वरना जो एक पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि इस तहरीक को बिल्कुल ख़त्म करके इन लीडरों को जेलों में रख के इस तहरीक को ख़त्म किया जाए, तो मुझे लगता है इस पे बहुत सोच करने की ज़रूरत है और एक नई लीडरशिप को सामने लाना होगा जो इस तहरीक को चलाएगी। ठीक है, एक नई लीडरशिप को लाना होगा जो कि इस तहरीक को चलाए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मज़ाहमत का इस्तारा इस दुनिया से चला गया, क्या कहेंगे आप उनके इंतकाल पर? जी, सैयद अली गिलानी एक बड़ा मुस्तकिल मिजाज और बड़ा दिलेर और तवाना आवाज़ थी कश्मीर की हुर्रियत की और आज़ादी की, और हमेशा से पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए जो उनका बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ रहा है और जो कभी भी तब्दील नहीं हुआ, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने कश्मीर की आज़ादी और उसका पाकिस्तान के साथ जो इल्हाक है उसका हमेशा मुकदमा लड़ा है। लेकिन आज तकलीफ़ का दिन है कि उनकी वफ़ात के ऊपर इंडिया ने, भारत ने और भारत की मोदी सरकार ने एक हठधर्मी का सबूत दिया है, और जो हुकूमत अपने आप को बड़ी जमहूरिया जो रियासत कहती हो और जो हुकूमत कहे कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, वहाँ पे एक शख्स के जस्ते खाकी से, एक लाश से डरा जाए, उससे ये लर्जा हो, उसके नमाज़े जनाजा की इजाज़त ना दी जाती हो, तो इसी को यजीदियत कहते हैं। इसी को पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस मसले को उठाना है और दुनिया भर के अंदर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा को इस पे बात करनी है कि अगर आप जनाजों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और वो लोग जिन्होंने जो हक का इस्तियारा बने हैं, हुर्रियत और आज़ादी का इस्तियारा बने हैं, और जिन्होंने जो भी जद्दोजहद की है वो पुरतशद्दुद जद्दोजहद नहीं है, लेकिन मुसीबत यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हुकूमत है वो एक गूंगी हुकूमत है, उसने कोई बात नहीं की। कल जब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया तो ये हुकूमत खामोश रही, ये हुकूमत मोदी के लिए दुआ गो थी। आज भी ये हुकूमत खामोश है इतने बड़े इशू के ऊपर। क्या पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुत्तहद होके सफारतकारी के जरिए भारत का ये स्याह चेहरा दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए था कि एक 90 साला बुजुर्ग के जनाजे से ये लर्जा है ये हुकूमत और ये जमहूरियत। हुकूमत ने शोक का ऐलान भी किया, परचम भी सरनेगू रहा। आवाज नहीं गई उन तक। ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी मैं समझता हूँ ये ठीक है, ये एक इस्तिहारे हैं, लेकिन इससे बढ़ना है। मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत वक्त कश्मीर के ऊपर कौम को मुत्तहिद करे, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस क़यादत को दुनिया में मनवाया था। मोहतरमा की हुकूमत ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नुमाइंदा तंजीम मनवाया था पूरे आलम इस्लाम के अंदर, दुनिया के अंदर, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इजाजत थी कि वो अपना कश्मीर का मुकदमा दुनिया के फोरम्स में पेश करते थे। इसके ऊपर इन्हें मुत्तहिद करना चाहिए सबको और दुनिया के अंदर सफारतकारी करनी चाहिए। चले, हुकूमत पर तनकीद तो बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी गिलानी साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, गिलानी साहब एक तवील अरसे तक कैदोबंद की सऊबतें भी उन्होंने काटी, नज़रबंद भी वो रहे, और ऐसे में ही उनका इंतकाल हुआ। और फिर इंतकाल के बाद तदफीन के मामले पर भी जो भारतीय हुकूमत ने हठधर्मी दिखाई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में बेशुमार जगहों पे अल्लाह तबारक ताला ने उन लोगों को अपना महबूब करार दिया है जो उसकी राह में जिहाद करते हैं, किताल करते हैं अपनी जान और माल से। और फिर साथ ये बात कहने के आगे ये भी कहा गया कि यही लोग बेहतर हैं अगर तुम जानो। इसी तरह जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया उनके लिए दुनिया और आखिरत के इनामात भी। और अगर हम बिल्कुल ऐन दुनियावी तौर पर भी देखें तो आज हम जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं उनकी बुज़ुर्गी और बुज़ुर्गी के साथ उनकी सारी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सरबुलंदी के लिए। पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ये भी नारा वो इसी बुनियाद पे लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद मदूदी अलैहि रहमत के साथी, दोस्त, उनकी फ़िक्र को लेके चलने वाले, और कायद आज़म अलैहि रहमत ने जो पाकिस्तान हासिल करके दिया उसकी तकमील का ख्वाब बसाया अपनी आँखों में वो शख्स दुनिया से रुखसत हुआ। यकीनन बहुत बड़ा जो है वो हुर्रियत का इस्तिआरा
और इस तरह भी बहुत बड़ा कि अपनी ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद और बेपनाह उम्र का कितना ही हिस्सा, उन्होंने किताब भी लिखी रुदाद कफ्स, जिसके अंदर कितनी बार जेल काटी, कितनी बार नज़र बंद रहे, और शायद ही आपने और मैंने अपनी जो होशो हवास की ज़िंदगी है उसमें बारहा ये देखा। और इसके साथ एक और किरदार भी उन्होंने अदा किया कि वो लोग जो वादी के अंदर हिंदुस्तान के कब्ज़े को नाजायज़ समझते थे, वो आज़ादी चाहते थे, पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते थे, और बतौर मुसलमान उन इलाक़ों का अपने उस दीन के मुताबिक वहाँ पे अमल करने और चलने की ख्वाहिश रखते थे, अज़म रखते थे, उनको यकजा भी रखा बहुत ही मोहब्बत के साथ। वो यूँ थे जैसे इस सितारों के दरमियान एक चाँद की मानिद हो, वो सबको अपने साथ लेके चले। लेकिन अगर आप इस बात की तरफ जाएं, और मैं इससे इख्तलाफ करूँगा, आप जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का चेहरा, हिंदुस्तान इतनी बड़ी जमहूरियत, उनका रवैया, भाई उनका तो यही होगा, वो क्यों आपको तस्लीम करेंगे? वो एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले के लिए क्यों नरमी इख्तियार करेंगे? वो एक कलमा गो के लिए वतवासौ बिल हक़ की वतवासौ बिस सब्र, जब आप हक बात कहने चलेंगे फिर आपको सब्र का दामन थामना होगा। वो इसलिए कि मुश्किलात और मसाइब आएंगी। मुझे तो कोई गिला नहीं, और ना मैं गिला करने चला हूँ कि मैं कहूँ जी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के लिए कुछ करेगी, मुझे तो इसके ऊपर कोई यकीन नहीं। अमेरिका या वो तंजीमें जो बैनुल अक़वामी सतह पे इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, मुझे दिखवा दीजिए, अक़वाम आलम में बता दीजिए कि सूडान की बात हो, मिस्र की बात हो, इराक़ की बात हो, आपके भूटान की बात हो, आपके बांग्लादेश के साथ म्यांमार की बात हो, रोहिंग्या के मुसलमानों की बात हो, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, कश्मीर जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, कभी कोई उसके लिए तड़पा नहीं तड़पेगा। इसके लिए हमें किरदार अदा करना है। आपने कहा हुकूमत ने योम स्याह, हाँ, कमज़ोरी की अलामत मैं कहूँगा। आपको तो कश्मीर आज़ाद करवाना था, आपने तो उन लोगों का जो है वो पुश्तीबान बनना था, आपने तो ये सारी कुव्वत इसलिए हासिल की थी कि हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि दिफाए पाकिस्तान का हिस्सा है कि हम कश्मीरियों की मदद करें। हमने बाढ़ लगवा दी, हमने कश्मीरी तंजीमों से लातल्लुकी का इजहार कर दिया, हमने कश्मीर की सिर्फ दो बातें करते हैं, हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे। मेरे नज़दीक बतौर सियासियात के तालिब इल्म भी, बतौर मुसलमान भी, आपकी इखलाकी हमायत की किसी को ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके मुजाहिदीन के घोड़े तैयार थे, वो घोड़ों पे सवार रहे, उनकी तलवारें उनके हाथों में रहीं, तो उन्होंने स्पेन तक गए, स्पेन से आगे फ्रांस तक गए और दरवाजे खटखटाए और क्या पैगाम दिया कि आइए कलमा कबूल कीजिए। आज हम माजरत ख़ाना रवैया इख्तियार करते हैं, तो ये माजरत ख़ाना रवैया इख्तियार करेंगे तो जहाँ जहाँ मुसलमान इकलियत में हैं उनके ऊपर जबर करने वाले, उनके ऊपर कब्ज़ा करने वाले, वो तो अपने तवा ना होंगे। किरदार हमारा क्या है? हम एटमी कुव्वत हैं, हम आज़ाद पाकिस्तान हैं, हम 22 करोड़ लोगों का वतन है, हमें उनका साथ देना है और अमली तौर पे देना है। अगर नहीं देंगे तो फिर ये आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं। बहरहाल सैयद अली गिलानी अपनी ज़िंदगी सारी तमाम करके आंखों में वो ख्वाब लिए इस दुनिया से चले गए, जबर का मुकाबला किया लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। आज वो कामयाब, वो कामरान ठहरे इस दुनिया में भी और अपने रब के यहाँ भी। ठीक है। अच्छा शौकत बसरा साहब, सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई, पार्लियामेंट के सामने परचम भी सरनेगू रहा, एक दिन का सोग भी मना लिया गया, लेकिन जो सलूक उनके साथ उनकी ज़िंदगी में रवा रखा भारतीय हुकूमत ने, ख़ास तौर पर जब वो क़ैद थे, उसके बाद जब वो नज़रबंद थे और इसी दौरान उनका इंतकाल भी हुआ, और उनकी तदफीन के मामले पर भी जिस तरह से भारतीय हठधर्मी हमें देखने को मिली, आप नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत को इस मामले पर दुनिया भर में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उठानी चाहिए? जैसा कि बैरिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि आपने तो आवाज़ बनना था कश्मीर की, लेकिन आपने क्या किया? शाइस्ता, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला गिलानी साहब को करवट करवट जन्नत में जगह दे, उनके बच्चों को सब्र दे, और उनकी जो कुर्बानियां हैं हम सब लोगों ने, मेरे ख्याल में आज कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिसने आज उस मर्दे मुजाहिद के लिए जो जद्दोजहद, जो एक डिटर्मिनेशन, जो एक हिम्मत, और मैं कहना उनके लिए कौन कौन से अल्फाज हैं, शायद डिक्शनरी में अल्फाज ही खत्म हो जाए कि जिस जुर्रत और दलेरी के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। वो कहते हैं ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ऐसे ही लोग जो है वो मैं समझता हूँ मशले राह होते हैं,
बहुत सारी नस्लों के लिए, और ऐसे लोग माएँ रोज रोज पैदा नहीं करती हैं। ये कोई लफाजी नहीं है, यकीन माने आज हर ज़बान, हर दिल उनके लिए, सैयद अली गिलानी साहब के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। हमारे तो कश्मीरी वैसे भी बहन भाई जितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो लीडर्स हैं, वो यासीन हो या गिलानी साहब हो या दूसरे लोग हो, लेकिन आज वो दुनिया से जाके भी अमर हो गए। और ये मैं समझता हूँ किसी भी इंसान की जो दुनिया में आता है, जब वो यहाँ से जाता है तो खाली हाथ जाता है, लेकिन आज देखिए कोई ऐसी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया, इवन जो भारत के अंदर भी मुसलमान बसते हैं, जो दुनिया के अंदर बसते हैं, उन सब के जो जज्बात हैं, जो उनकी अल्फाज हैं, जो उनकी सोचें हैं, वो गिलानी साहब को खराज तहसीन पेश कर रही है। लेकिन मैं शायस्ता, जो बातें मेरे दोस्तों ने की हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। कम से कम मैं आज के दिन कोई इख्तलाफी बात नहीं करूंगा। बहुत टाइम पड़ा है सियासत करने के लिए, बहुत वक्त पड़ा है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आज का दिन जो है मैं समझता हूँ सिर्फ इख्तलाफ की बात तो नहीं है, ये तो एक डिमांड है कि करना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो बतौर मुसलमान अपने मुसलमानी पे रोया हूँ, मैंने पीटीआई की तो नहीं बात की, किसी को नहीं किया, ना हुकूमत का नाम लिया। ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि हर किसी का किरदार हर किसी के सामने है कि किसने किसके लिए क्या किया। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है, मोदी से लेकर सालगिरह मैं, लेकिन फिर मैं साहब हमने कोई जिक्र नहीं किया आपका पीटीआई का बतौर मुसलमान, हुकूमत का जिक्र ये तरीका नहीं है। आप सब लोग बोले हैं, मैंने किसी को एक लफ्ज इंटरप्ट नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए बसरा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। फिर शाइस्ता, हर किसी का चेहरा, हर किसी का किरदार पाकिस्तानी भी जानते हैं, कश्मीरी बहन भाई भी जानते हैं, और दुनिया भी जानती है कि कौन क्या कर रहा है। मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि हम सब लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो दुनिया के अंदर हैं, हमें अपने कश्मीरी लीडर्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए अपनी जान से बढ़कर उनकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो आज शख्सियत दुनिया से गई है, आखिरी दम पे भी मैं समझता हूँ उनकी जो कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ थी, जो मोहब्बत पाकिस्तान के साथ थी, वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, वो आखिरी वक्त भी यही बातें कर रहे थे। तो मैं फिर कहूंगा कि आज का दिन हमें कम से कम कोई इख्तिलाफी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आज उनको अजीम शख्सियत को उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ठीक हो गया। नईमा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस तरह से हमने देखी और देखते ही आ रहे हैं कश्मीर के मामले पर, और ख़ास तौर पर सैयद अली रज़ा गिलानी के मामले पर भी जिस तरह से वो उनका इंतकाल हुआ, आप नहीं समझती कि ये तबई मौत नहीं है बल्कि एक कत्ल है? देखिए शाइस्ता, इससे पहले भी जब अशरफ सहराई साहब की मौत भी हुई थी, वो जेल में बंद थे और बताया गया था कि उनको कोविड है। उनके घर वालों को जब उनको अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद उन्हें पता चला था कि उनको कोविड हुआ है और अस्पताल में है और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला, और वो भी एक तरह से कस्टोडियल किलिंग उसको माना जाता है, इसलिए कि उनके घर वालों को पता भी नहीं था और उनको बताया गया फिर दूसरे दिन कि उनकी हलाकत हुई है। उसके बाद से जो उनके घर वालों के साथ जो सलूक किया गया, उनके 2 बच्चे इस वक्त भी जेल में बंद है, और क्योंकि उन्होंने वहां पे तदफीन जो की थी, कुछ लोग आए थे जिन्होंने नारे दिए थे। यही हाल गिलानी साहब पिछले 10 बरस से जायद अरसे से वो घर में नजरबंद थे, इलाज के लिए बाहर जाना जाते थे, और उन्होंने कई बार हुकूमत हिंद से दरखास्त की कि उन्हें बाहर जाने दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करवाएं, या अपनी उनकी बेटी सऊदी में है, वो वहां जाना चाहते थे, अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी इजाजत नहीं मिली। इतनी इजाजत नहीं थी कि उनके अपने लोग जो अपने रुफ़क़ा हैं वो उनसे मिले, आखिरी दम तक उनसे कोई नहीं मिला एक्सेप्ट उनके 2 जो बेटे थे वो वहां पे थे। तो इसको तो आप प्योरली एक कस्टोडियल किलिंग आप मानते हैं, इसलिए कि हमें क्या पता है किन हालात में वो अंदर थे, किन हालात में वो रहे, और उनका इलाज कुछ भी नहीं चल रहा था। तो मेरे ख्याल में इसको डेफिनेटली एक मर्डर समझना चाहिए जिस तरह से उनकी हलाकत हुई है, और इस पे इंसानी हुकूक की तमाम तंजीमें जो है इसको कंडेम करना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और आलमी बरादरी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। नईमा अहमद मेजूर साहिबा, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हुकूमत के साथ लड़ना है या आपस में लड़ना है, ऑपोजिशन अब तक ये तय नहीं कर पा रही है। पीडीएम जिस आन बान शान से निकली थी, आज आलम यह है कि इसकी बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में गुत्थम गुत्था हैं। और मजीद देखें तो नून लीग के अंदर एक टसल चल रही है, बयानी और एहतजाज के तरीक़ाकार पर किसी का इत्तफाक नहीं है। मजमूई तौर पर अगर देखें तो हुकूमत को अपनी कारकर्दगी ने मजबूत किया हो या ना किया हो, लेकिन ऑपोजिशन की कमजोरी ने हुकूमत को ताकत जरूर बख्शी है। लेकिन इस सब के बावजूद ऑपोजिशन गिरती पड़ती फिर से एहतजाज और लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर ऑपोजिशन को मिल बैठकर तमाम मसाइल के हल के लिए दावत दी जा रही है। जब 3 साल से हुकूमत ऑपोजिशन आपस में मिलकर चलने को तैयार नहीं हुए तो आगे क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर लॉन्ग मार्च के लिए पीडीएम जा रही है तो फिर उम्मीद है कि इस्तीफे भी देकर जाएगी। क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। जो बाय इलेक्शंस हमारा पीडीएम के दोस्तों ने पीपल्स पार्टी के बगैर लड़े हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली वहाँ हुकूमत का जीत हुआ है और पीडीएम का शिकस्त हुआ है। अगर अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी। चौधरी साहब आपके सामने ही है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि पीडीएम अगर लॉन्ग मार्च करने जा रही है तो पहले उम्मीद है कि इस्तीफे देकर जाएंगे, तो क्या आप इस्तीफे देने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, बिलावल साहब को हक हासिल है तजावीज़ देने का भी। एक बड़ी सियासी जमात को लीड करते हैं और यकीनन उनकी तजावीज़ काबिल अमल और काबिल सताइश भी हैं। और बीइंग ए सियासी इत्तेहाद और अपोजिशन पार्टीज़ का इत्तेहाद, इन बातों पे सोचना चाहिए और सोचेंगे भी। हम बात करते भी हैं, पहले भी की। उस वक्त बिलावल साहब को हमारी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ था और हमसे अलहदा हो गए। आज अगर वो किसी बात पे इत्तेफाक करना चाहते हैं तो बिल्कुल तशरीफ़ लाएं, बैठे मिल के। और इसी वजह से अलहदा हुए थे ना, मिल के इन चीज़ों को देखें। ऐसा जो इत्तेहाद पीडीएम का था कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, कोई एक सियासी जमात नहीं बन गए। कुछ नुकात पे इकट्ठे हुए और भरपूर तरीके से उसके ऊपर अमल भी किया, उनके ऊपर चले। वो मुतालबात भी जायज़ हैं, वो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के मुतालबात हैं, उससे पीटीआई भी नहीं भागेगी। शफाफ इंतखाबात की बात करें, आइन की हुक्मरानी की बात करें, अदलिया की आज़ादी की बात करें। आपने कहा कि नून लीग के अंदर टसल, ये ख्वाब है बहुत सारे लोगों का। नून लीग एक है, एक थी, एक रहेगी और एक ही सिमत और एक ही कायद के जो है वो मंशूर पे, नज़रिए पे सब चल रहे हैं। हाँ, मुशावरत करते हैं, इख्तलाफ राय उस मुशावरत में होता है, लेकिन 3 साल में किसी ने कहीं ऐसा नहीं देखा कि किसी एक फ़ैसले पे कोई एक फर्दी अमल ना कर रहा हो, सब मिल के चल रहे हैं। ये ख्वाब है, बहुत सारे लोगों ने देखा, कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ ने भी की। आज के भी जो पीछे बैठ के वो सिलेक्टेड को चलाने वाले हैं सिलेक्टर्स, आज उनकी भी ख्वाहिश है और वो भी किसी ना किसी तरीके से ये चाहते होंगे। हुकूमत, आपने कहा ताकत, हाँ हुकूमत की ताकत बहुत है, वो मानना पड़ेगा। एक तो हुकूमत की ताकत वो सिलेक्टर्स हैं जो लेकर आए और फिर उन्होंने सहारा देने के लिए बहुत सारे जो है वो फौरी रिटायर होने वाले साहिबान, जिस तरह आसिम सलीम बाजवा साहब को पहले तर्जमान बनाया वज़ीर आज़म का, बात ना चली, सी पैक अथॉरिटी में लेके आए। इसी तरह और बहुत सारे, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसको भी देख लें, वहाँ पे रिटायर्ड जनरल बैठे हैं, वापडा वाले जनरल साहब को भी। तो बहुत सारे रिटायर्ड जर्नलों के ऊपर जो है वो कंधे पे रख के ये चल रहे हैं। दूसरी ताकत इनकी नैब है कि एक वज़ीर एक बयान देता है, दूसरे दिन नैब उसके ऊपर अमल शुरू कर देता है। और ख़ासकर उस दिन से जब इमरान खान साहब के एक दोस्त के चैनल से जनाब चेयरमैन नैब की एक वीडियो लीक की गई, फिर इनकी ताकत वो वीडियो ज़्यादा अदलिया है कि जो सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, और वो जज अरशद मलिक की बिल्कुल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है उस अदालत की। सुन लीजिए ना, हुकूमत की ताकत सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर जज निगरानी कर रहे हैं। बात करें हुकूमत की ताकत की बात जी, हुकूमत की ताकत वही है ना जी, वही जज साहिबान है। सुन लें, ये तो तौहीन अदालत मुझ पे लगेगी, ठीक है शौकत वो तो मुझ पे लगेगी ना। साहब अभी तो हम देख रहे हैं कि डिवाइडेड है ऑपोजिशन, लेकिन पहले बिलावल भी ये कह
चुके हैं और मरियम भी ये कह चुकी हैं कि हुकूमत के अलावा सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। इन केस अगर ये मिल जाते हैं तो आप हुकूमत के लिए कोई खतरा देख रहे हैं? पहली बात तो शाइस्ता, अच्छी अपोजिशन अल्लाह ताला हर हुकूमत को दे। और क्या ये अपोजिशन है जो ऊपर से तो आप किन की तरह देखें, जरा गुफ्तगू सवाल गंदम जवाब करने आप पूछ रही हैं कि आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ ताफा रहा है, वो बात को ले जाते हैं मशरक और मगरब में। इनका तो जो हालात, इवन आप अपोजिशन को छोड़ दें, विदन जो नून लीग जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। जो प्रेसिडेंट है जो मुस्लिम लीग नून के, वो कराची में कुछ कह के आती हैं, कहते हैं, और इस्लामाबाद पहुंचती हैं उनकी दूसरी लीडर तो वो कुछ और कहती हैं। तो इनका तो एक ही एजेंडा है, किसी ना किसी तरीके से जो इनके खिलाफ केसेस हैं खान साहब मान जाएं, कोई रिलीफ दे दें ताकि हमारे मामला आगे बढ़ जाएं। इसलिए हमें तो बिल्कुल इनका हमें पता है, देखे ना, वही अपोजिशन है जो आज से साल पहले आर पार करना था, सीधे मुंह पे मारने थे। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि डोंट वेस्ट योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इतना आपका इंपॉर्टेंट टाइम है और आपको पता है कि इस वक्त जो शो है कितना देखा जाता है। तो सो इनको ये बिल्कुल फारिग हैं। इनको पता है इस बात का कि इनका सारा, अब जो दोस्त हमारे आते हैं डिफेंड करने के लिए, आपको पूछ रही हैं कि बताएं जी आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। कुछ स्ट्रेटेजी हो तो बताएं ना। स्ट्रेटेजी तो ये है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे जो केसेस हैं, हम लोगों ये कहीं विक्टिमाइजेशन हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती, भाई अदालतों में जाएं, जहां वही अदालतें हैं जहां से आपको इंसाफ मिलता है, तो आपके हक में फैसला आता है, हक और सच की फतह हो जाती है। फैसले खिलाफ आ जाते हैं तो जज बुग़्ज़ के मारे हुए होते हैं, इनके बच्चों को मार देंगे। तो ये एक बिल्कुल इस वक्त इनकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल शराजा इनका बिखर चुका है। चले आप यानी आपको नहीं लगता कि आपको पीडीएम से या पीपल्स पार्टी से किसी भी किस्म का खतरा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसलिए देखिए, खतरा बात को समझिएगा, ठीक, सियासत में नामुमकिन का लफ्ज तो वैसे नामुमकिन का वैसे ही लफ्ज जो पागलों के डिक्शनरी में होता है। सियासत में हर चीज मुमकिन है, तो फिर तो ये भी मुमकिन है कि हुकूमत की बात सुनने के लिए तैयार हो जाए ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हैं। सुन ले मेरी बात, ये भी आपने अच्छा सवाल कर दिया। ये तैयार हैं, तो वज़ीर आज़म ने लिखा काम करेंगे। ये अभी आप ये हम ला रहे हैं, इस्लाहात ला रहे हैं इलेक्शन की, इसमें शामिल होंगे और बहुत सारी चीजों में ये शामिल होंगे, 100% होंगे। आपने बाजी में भी देखा कि जी जनाब इनकी जो बढ़के हैं, जो गुफ्तगू है वो पूरा पाकिस्तान सुनता है। सम अप कीजिएगा बसरा साहब, मुझे बैरिस्टर साहब की जानिब भी बढ़ना है। जी मैं तो सिर्फ यही बात आपको, ठीक है बिल्कुल किसी किस्म का, बल्कि ये है कि अपोजिशन को अपोजिशन से खतरा है, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। यानी हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ठीक है बैरिस्टर साहब, बिलावल ये कह रहे थे कि यानी कि जियाले जो हैं, बेसिक खतरा जो है ना हुकूमत को, वो जियालों से है और सिंध में उन्होंने अर्ली इलेक्शन की बात भी की है। किस तरह से आप लोग जो है वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे अब, खास तौर पर जब बिल्कुल तनहा हो जाएंगे? जब पीडीएम के साथ थे तब टफ टाइम नहीं दे सके, आखिर फार्मूला क्या आपके पास? देखिए, फार्मूला नहीं होता। असल में अगर अवाम के मसाइल हों और अवाम उन मसाइल के अंदर गिरफ्तार हों और तंग हों, तो जो भी उनकी आवाज़ बनता है अवाम उसके साथ चलते हैं। और अपोजिशन ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा मुत्तहिद हो तो हुकूमतें ख़त्म होती हैं। आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर के अंदर आखिरी वक्त पे हम लोग अलग-अलग थे। ARD से PMLN अलग हो गई, इन्होंने APDM बना लिया, लेकिन उसके बावजूद मुशर्रफ की हुकूमत का खात्मा हुआ। अब पिछला जो जनरल मियां नवाज शरीफ का दौर था, उसके अंदर भी हम लोग अपोजिशन थे, बड़ी पार्टी, और PTI दूसरे नंबर पे पार्टी थी, लेकिन हम उस वक्त जरा निजाम के चलाने की बात करते थे, तो हमारी थोड़ी सा जो लहजा नरम था उसका हमें नुकसान हुआ और एक अपोजिशन पार्टी को बनाया गया, उभरे वो, उन्होंने बहुत से दिल फरेब नारे लगाए जो कि सारे झूठ साबित हुए। तो उस वक्त भी अपोजिशन मुत्तहिद नहीं थे, हम और इमरान खान को इकट्ठा जद्दोजहद तो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके लिए हमेशा अपोजिशन का इत्तेहाद होता, तो जो काम थोड़े अरसे में होना था वो जल्दी हो जाता। और उसकी बड़ी मिसाल ये है कि जब हमारा पीडीएम बना, उस इत्तेहाद की वजह से हुकूमत को हमने अच्छा खासा टफ टाइम दिया। हुकूमत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन से इबरतनाक शिकस्त हुई, सेनेट में हारी और मंजिल बिल्कुल करीब थी, हम जीत के करीब थे। कौमी असम्बली में हमने शिकस्त दे दी हुकूमत को। लेकिन एक जो जिद थी PMLN की और मौलाना साहब की कि हमने लॉन्ग मार्च तब करना है जब असेंबलियों से इस्तीफे देंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च करना है,
اب یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ استعفے دینے جا رہے ہیں؟ چلیں بھائی، اگر آپ مرکز سے نہیں دیتے، آپ کو قومی اسمبلی سے پیار ہے تو ایٹ لیسٹ پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں، وہاں پہ آپ کی اکثریت ہے، ہم دیں وہاں پہ تو ہماری کوئی، یہ کہتے ہیں نا ہماری حیثیت نہیں، 6-7 ووٹ ہیں، بھائی آپ کی حیثیت ہے، آپ کی تقریباً 6-7 ووٹوں کا فرق ہے حکومت کے ساتھ، آپ استعفے دیں، ہم دیکھتے ہیں اسمبلی ٹوٹتی ہے۔ اور یہ اپوزیشن کیوں نہیں کہہ رہے پی ایم ایل این والے؟ میری چودھری صاحب سے ہے گزارش کہ بزدار جیسا حکمران ہو، آصف زرداری کے خلاف تو آپ سڑکوں پہ نکل آتے تھے، حالانکہ پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ بزدار جیسے حکمران کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتے، باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ جو احتجاج آپ نے ہمارے خلاف یعنی آپ کے خیال میں پی ایم ایل این اپوزیشن نہیں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے جعفر صاحب سے۔ دیکھیں، اپوزیشن لیڈر ہے میاں شہباز شریف، جب اپوزیشن لیڈر کہے کہ مجھے مزاحمت کی سیاست نہیں کرنی، مجھے صرف قومی حکومت بنانی ہے، اور جو پنجاب کا لیڈر آف دا اپوزیشن کہے کہ ہم نے خاموش، وہ خاموش ہیں، کدھر ہیں میاں حمزہ شہباز شریف؟ کب وہ بزدار جیسے حکمران کے خلاف یہ نہیں نکل رہے؟ جو 12 کروڑ لوگوں کے اوپر ایک، میں کیا کہوں، ایک عذاب کی صورت میں ہے۔ پنجاب جو بلے شاہ کی، بابا فرید کی، خواجہ فرید کی دھرتی ہے، وہاں پہ ایسا شخص ہے جو بولتا ہی نہیں ہے، جو گونگ ہے۔ ایک گونگ کو انہوں نے ایک بالکل ربر سٹیمپ جو شخص ہے اسے بنا دیا ہے چیف منسٹر، اور پی ایم ایل این خاموش ہے، کوئی احتجاج نہیں کرتی، کوئی پنجاب کے عوام کی بات نہیں کرتی، تو ہم اس پہ حیران ہوتے ہیں کہ نہ آپ استعفے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ نے چودھری صاحب سے یہ سوال پوچھا، احتجاج کرتے ہیں، وہ آپ اپوزیشن کیسی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے سوال کر دیا ہے، یہ سوال کا جواب بھی ہم چودھری صاحب سے لے لیں گے، لیکن ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر چودھری صاحب سے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریک پر جانے سے پہلے بیرسٹر صاحب نے چودھری صاحب سے ایک سوال اٹھایا تھا، وہ سوال کا جواب بھی ہم لے لیں گے چودھری صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ چلاتے ہیں شیخ صاحب کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی صدر کچھ کہہ رہا ہے، نائب صدر کچھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئیں مل کر بیٹھیں بات کریں، کیا کہا ہے انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہا ہے ایک بندہ جو ان کا صدر ہے کہ قومی حکومت بنانی ہے، قومی حکومت کے لیے نہ ان کا کوئی بات ہے، نہ ان کا سر ہے، نہ پاؤں ہے باتوں کا۔ دوسری کہہ رہی ہیں کہ نہیں، حکومت سے بات چیت نہیں کرنی، تو کس سے بات چیت کرنی ہے آپ؟ ایک ایسا وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے۔ شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ چودھری صاحب، ایک تو بیرسٹر صاحب جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، پھر بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ اپوزیشن نہیں کر رہی، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اپوزیشن ہی جب اپوز کر رہی ہے ایک دوسرے کو، تو حکومت کو ٹف ٹائم کب دینے جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں سیاسی اختلافات ہیں، رہیں گے، اور وہ یہی اختلافات ہیں، یہ حسن ہے، جو ہماری پالیسیز ہیں، ہمارا رویہ ہے، اس کے اوپر وہ بات کریں گے، ان کے اوپر ہم بات کریں گے، قوم کو جو چیز پسند ہوگی وہ اس کو ووٹ کے ذریعے چنیں گے اور آگے چلیں گے۔ ہم اپوزیشن نہیں کر رہے، بہت بھلی بات کہی، ہم اپوزیشن نہیں کر رہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، مفتاح صاحب، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب، حمزہ شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم بی بی جیلیں کس بات پہ بھگتیں؟ مریم بی بی نکلیں جلسے کرنے، اور جب ابھی انہوں نے 5 یا 6 جلسے کیے تھے، سرگودا آخری جلسہ تھا، اس وقت آزاد کشمیر کا پرچم وہاں پہ لہرایا تھا، اگلے دن گرفتاری، جیل، اور پھر پاسپورٹ تک ضبط۔ کوئی ایک گفتگو کریں، کوئی ایک آواز اٹھائیں۔ آواز ہم نہیں اٹھائی، پنجاب میں اٹھائی، حمزہ شہباز صاحب نے اٹھائی بطور اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے اندر بھی۔ ہاں، سڑکیں نہیں بلاک کہیں نظر آئیں، کوئی ٹائر جلتے ہوئے نظر نہیں آئے، املاک جلتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ ہم نے یہ ملک 5 سال میں سنوارا ہے، بنایا ہے۔ ہم جمہوری انداز میں احتجاج کو بالکل پی ڈی ایم میں رہ کے بھی لیڈ کیا، اور بطور مسلم لیگ نون بھی لیڈ کیا۔ یہ کشمیر کے انتخابات میں کیا تھا، اور اگلے دن جو کراچی میں آخری جلسہ تھا، اس کے اندر میاں محمد نواز شریف نے کیا بات کی کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کیوں ہیں؟ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی وجہ سے۔ اور یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے 3 سال میں یہ حشر کر دیا اس ملک کا۔ اب شیخ رشید صاحب کی بات کی طرف آ جاتے ہیں،
انہیں بہت فکر ہے کہ مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف کو اس کی بات کو ٹی وی پہ چلانے پہ پابندی ہے، نام لینے پہ پابندی ہے، اور اس کے نام سے خبریں آج بھی بنتی ہیں اور یہ کہتے ہیں ہماری سیاست نہیں ہے۔ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کس کے ترجمان ہیں؟ کیا وہ عوامی لیگ کے ترجمان ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں، گیٹ نمبر 4 کے ترجمان ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں، یا وہ حکومت کے؟ دیکھیے حکومت کے ترجمان وہ اگر ہیں تو وہ وزیر داخلہ کے طور پہ کچھ بیان دے رہے تھے تحریک لبیک کے متعلق، اور فواد صاحب کچھ بیان دے رہے تھے۔ چلیں حکومتی ترجمان کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں یہی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو کیا شیخ رشید صاحب اپنی طاقت کے زوم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ظاہر بات ہے اپنی کمزوری کی بنا پہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوہدری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بیرسٹر صاحب کی جانب بھی جاؤں گی کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ بیرسٹر صاحب 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ٹکریں مار رہی ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپس میں آپ لوگ لڑ پڑے ہیں، فیٹف کا معاملہ ہو، ای وی ایم کا معاملہ ہو، کئی ایشوز پر آپ حکومت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ یہ اسٹریٹجی کام آ رہی ہے نہ وہ اسٹریٹجی کام آ رہی ہے، پھر چیزیں جا کس طرف رہی ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہماری لڑائی یا ہماری صلح سے کچھ نہیں بنے گا، یہ حکومت ایکسپوز ہو گئی ہے جو بڑے دل فریب نعروں کے ساتھ آئی تھی، 3 سال کے بعد رزلٹ یہ ہے بدترین مہنگائی، بدترین غربت، بدترین بے روزگاری، بدترین جھوٹ اور منافقت کے باوجود اب کیا بات ہے کہ اب میڈیا کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، نئے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اس فاشسٹ حکومت کے خلاف بات نہ کرے، تو حکومت ایکسپوز ہو چکی ہے، اس سے لوگ خوش نہیں ہیں، اکثریت خوش نہیں ہے، اور کتنی دیر تک امپائر کے سہارے معاملات چلیں گے؟ یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ آج کا فیصلہ ہے یا کل کا فیصلہ ہے۔ لیکن چودھری صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر جیلیں جو ہیں وہ اپوزیشن ہے تو رہائی کیا ہے؟ اگر ایک مجرم جو ہو عدالتوں سے سزا ختم کروائے بغیر لندن تک اسے پاکستان میں واحد وہ اگزامپل بن جائے کہ انہیں لندن جانے کی اجازت دے دی جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ بولتے ہی نہیں، آپ اپوزیشن میں صرف چودھری صاحب کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف یہاں پہ موجود ہوتے، جیل کے اندر رہتے اور باہر پی ایم ایل این کے ورکر ایک تحریک بپا کرتے، اپنے گھروں میں نہ بیٹھتے، خاموش نہ ہوتے، تو کیا یہ آج حکومت باقی رہتی؟ جس صوبے کے اندر 160 کے قریب ان کی نشستیں ہیں، یہ سب سے بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی سے بھی بڑی جماعت تھی الیکشن کے مطابق، لیکن یہ وہاں پہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ گفتگو ہی نہیں کرتے، وہاں پہ کمپرومائزز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ، اور پھر عوام کے سامنے کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ہمیں شادی پہ نہیں جانے دیا گیا، ہم کتنا بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بھئی شادی ادھر کر لیں، یہاں پہ مریم صاحبہ بھی شرکت کریں، صفدر صاحب بھی شرکت کریں، صفدر صاحب کا ذکر ہی نہیں ہوا پوری شادی میں کہ وہ کیوں نہیں گئے لندن، حالانکہ ان کا تو ای سی ایل میں کوئی نام نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے لوگوں کو آپ ان کا نام موجود ہے ای سی ایل میں، حکومت میں اپوزیشن۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ بیرسٹر صاحب کہیے گا، آپ صورتحال دیکھ ہی رہے ہیں، کس اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے آپ نے؟ اور جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ آئیں بیٹھے بات کریں، تو کیا آپ لوگ واقعی بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر حجت تمام کر رہے ہیں؟ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، آپ ان کی لچھے دار گفتگو لفاظی سنتی رہیں، اسی طرح اگلا الیکشن بھی ہوگا اور انشاءاللہ پھر یہ اسی تنخواہ پہ دوبارہ کام کریں گے، اور عمران خان اگلے 5 سال بھی یہاں پہ حکومت بنائے گا۔ اشرف صاحب تنخواہ کون دیندہ جی؟ تو کر لو، آپ درمیان میں انٹرپٹ کریں نا یار، آپ اتنا بولے میں کچھ ڈب کرتا ہوں ہم لوگوں کو۔ اچھا تو میں تو پوچھیا تنخواہ کتوں لبدی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ اچھا آپ اگر ان کی تمام آج کے ٹاک شو گفتگو سن لیں، نون لیگ کے اور اگر لوگ جو کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گفتگو سن لیں، یہ تو آپس میں ہی وہ کوئی کہہ رہا ہے قومی حکومت بنانی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بڑے میاں صاحب کا بیانیہ ہے، کوئی چھوٹے میاں صاحب کا بیانیہ ہے، کوئی رائیونڈ کا مریم بی بی کا بیانیہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو سٹارٹ میں جو بات کہی تھی، ڈونٹ ٹیک دیم سیریس، یہ اپوزیشن جو ہے یہ سارے جو ہیں یہ بھانمتی کا کنبہ ملا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اندر سے خلاف ہے، ساتھ یہ عمران خان کو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں حکومت کو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا جو 70 سال کا پھیلایا ہوا گند تھا، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس گند کو صاف کریں، چیلنجز ہیں ہمارے لیے۔ جو امپورٹنٹ بات کہنی ہے شاید آخری بات، یہ اسی طرح اگلا سال بھی آ جائے گا، الیکشن بھی ہوگا، ان کی آپ گفتگو سنتے رہیے گا، یہ انشاءاللہ الیکشن ترامیم بھی بسرا صاحب وہ 70 سال میں یحییٰ صاحب بھی ہیں، ایوب صاحب بھی ہیں، ضیاء صاحب بھی ہیں، مشرف صاحب بھی ہیں، بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ جی وہ ہمارے نہیں ہیں۔ جی بیرسٹر صاحب
ये कह रहा था कि जब ये अगले इलेक्शन में यही रिजल्ट आएगा ना, फिर ये कहना शुरू कर देंगे सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड, धांधली हो गई धांधली हो गई। इसलिए चूंकि अब इनको पता है इस बात का कि अगर अभी 5 साल इनके नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह की गुफ्तगू भी करते हैं। ये दूसरी काफिली साबित होती है। देखिए ना, जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ना हो या सियासत करनी हो, तो लीडर, अभी हम सैयद अली गिलानी साहब की बात कर रहे थे, गिलानी साहब ने कितने जुल्म सहे हैं, कितनी। नुसरत साहब जरा वापस पाकिस्तान आ जाओ, आप अंदाजा करें लीडर गल बात इमरान खान साहब की करें, आप अली गिलानी साहब को छोड़ें। ठीक है, अब देखना ये है कि पीडीएम इकट्ठी होती है, पीएमएल पीपल्स पार्टी इकट्ठी होती है और पीटीआई से बात करती है या नहीं, ये फैसला तो वक्त ही करेगा और वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।